جی شہباز قریشی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. قائد حزب اختلاف نے ابھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہم نے سب نے بڑے تحمل سے اور ٹریجری بینچز نے بڑے احترام سے ان کی گفتگو سنی. جناب والا آپ نے پلیز نو کراس ٹاک سنی گئی ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا جناب والا قائد حزب اختلاف کے استحقاق کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ان کی گفتگو کو سنجیدگی سے سنا بھی گیا. سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آج تاریخی دن ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً آج ایک تاریخی دن ہے. تاریخی دن اس لیے ہے کہ آج انشاءاللہ یہ ایوان ایک ایسی قانون سازی کرنے چلی ہے جس سے کہ ماضی کی جو خرابیاں تھیں اور جو قباحتیں تھیں ان کو تبدیل کر کے ایک شفاف الیکٹورل نظام متعارف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ پارلیمنٹ انشاءاللہ. جناب والا قائد حزب اختلاف نے کہا کہ ہم کوئی کالا قانون مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں جناب والا. میں ان کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں، کوئی کالا قانون مسلط نہیں کرنا چاہتے. ہم ماضی کی کالک کو دھونا چاہتے ہیں آج. جناب والا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج ایک تاریخی دن اس لیے ہے کہ 1970 کے بعد جتنے انتخابات آئے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا. 70 کے انتخابات کے بعد کون سا انتخاب ایسا نہیں آیا جس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھایا گیا. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. کبھی پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور 2013 میں تحریک انصاف نے اپنے اعتراضات قلم بند کیے اور جوڈیشل کمیشن کا رخ کیا کیونکہ ہر اعتراضہ کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم تاریخ سے کب سبق سیکھیں گے اور ہم اپنی سمت کو درست کب کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آج ہم اپنی سمت کو درست کریں اور ایسی قانون سازی کریں کہ ہمیشہ کے ذریعے ایک شفاف اور کریڈیبل نظام جو ہے اس کو متعارف کروا دیا جائے. قائد حزب اختلاف فرماتے ہیں کہ ہم اس قانون سازی کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. بصد احترام ایسا ہرگز ارادہ جناب والا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ حکومت ایک ارادہ کر چکی تھی. حکومت نے بارہا آپ سے، آپ کے ممبران سے رجوع کیا، آپ سے درخواستیں کی کہ ڈیمونسٹریشن لیجئے. جس آپ ای وی ایم مشین کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ہم نے اس کو پورا رکھنے کا، پیش کرنے کا موقع فراہم کیا تاکہ آپ کے اعتراضات کو انکارپوریٹ کر لیا جائے اور ایک بہتر جو قدم آگے اٹھایا جائے. شومیے قسمت کہ آپ نے اس وقت اس پر وہ توجہ نہ دی. آپ فرماتے ہیں کہ اجرت میں یہ آپ نے ایوان جوائنٹ سیشن ہم پر مسلط کر دیا. ہرگز نہیں جناب والا. ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ عرض کرتا چلوں گا کہ یہ ارادہ ہمارا آپ کے آیا ہو چکا تھا. 11 تاریخ کو ایک اجلاس کی تاریخ دے دی گئی تھی. اگر اجرت میں ہوتا تو آپ اپنے ممبران سے رجوع کیسے کرتے؟ آپ جو لوگ باہر گئے ہیں ان کو فونوں کے ذریعے واپس کیسے بلاتے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجرت نہ تھی، آپ کے علم میں تھا. 11 تاریخ کو اجلاس کی تاریخ رکھی گئی، اس اجلاس کو مؤخر کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مؤخر کیا کہ ہمارے پاس عددی اکثریت نہ تھی. میں صد احترام اس سے اختلاف کرتا ہوں. اگر ہمارے پاس عددی اکثریت نہ ہوتی تو آج ہم یہ بل کیسے پیش کر رہے ہوتے؟ یہ آج آپ کی تقریر کا لب لباب اس بات کا اعتراف ہے کہ حکومت کی صفوں میں یکجہتی ہے. حکومت کے الائز حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ
हम एक जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। जनाब वाला, लेजिस्लेशन का एक तरीकाकार है और मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप एक मंझे हुए सियासतदान हैं और आप जानते हैं कि लेजिस्लेशन का प्रोसीजर कैसे होता है, बिल इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कैसे किया जाता है, हाउस में वोटिंग कैसे होती है, सेनेट में कैसे जाता है, सेनेट में अगर लैप्स हो जाए तो उसका तरीकाकार क्या होता है, अगर तरामीम पेश कर दी जाए तो उसकी इस्लाह का तरीकाकार क्या है। हमने हर उस तरीके को फॉलो किया और जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं उसमें कोई कोताही नहीं बरती। जनाब वाला, हमने इजलास जो मौखिर किया टाइम गेन करने के लिए नहीं, हमारे कुछ मोजेज मेंबरान थे, उनकी कुछ सवालात थे, उनकी कुछ तशनीगी थी, उस तशनीगी को दूर करने के लिए उन्होंने मजीद वक्त मांगा और हमने उनको वक्त दिया, हमने उनको ब्रीफिंग्स दी, हमने उनको डेमोन्स्ट्रेशंस दिए, हमने उनको कायल किया, दलाइल से कायल किया और जब वो दलाइल से कायल हुए तो आज अल्लाह के फजल व करम से वो इन सफ़ों में मौजूद बैठे हैं। जनाब वाला, आप कहते हैं कि ये ईवीएम मशीन जो है, ये आपने इसको एक नाम दिया ईविल विशियस मशीन का। ये आपका हक है, मैं इस हक को झुटला नहीं सकता, लेकिन मैं इस करता हूं ये ईवीएम मशीन कोई ईविल विशियस मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईविल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। ये मशीन उस विशेष सोच को, जिस विशेष सोच के बलबूते पर यहां हुकूमतें मुसल्लत की गई, उसको दफनाने के लिए एक अहम टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। आज आप कहते हैं दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत और एक क्रेडिबल प्रोसेस को हम तरजीह देना चाहते हैं और इंशाअल्लाह उसको आगे लेकर चलेंगे। आपने 73 के आइन का जिक्र किया, बजा तौर पर 73 के आइन पर ये पार्लियामेंट कल भी मुत्तफिक थी और आज भी मुत्तफिक है और हम समझते हैं कि ये एक मुकद्दस अमानत है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे हवाले की है और इंशाअल्लाह इस अमानत की हम पूरी हिफाजत करने का इरादा रखते हैं। जनाब वाला, आपसे मुखातिब होकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फरमाते हैं कि आप एक तारीखी गलती करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज आप एक तारीख रकम करने जा रहे हैं, तारीखी गलती को छुटलाने जा रहे हैं। आप इस नई कानून साजी के जरिए इंशाअल्लाह एक शफाफ निज़ाम मुतारफ कराने का इरादा रखते हैं। जनाब वाला, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने आपकी ज़ात पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा, आप पर उंगली उठाकर कहा कि आपको हम सद एहतराम कबूल करेंगे कि अगर आप अपनी पार्टी मेंबरशिप से मुस्तफी हो जाएं। मैं पूछता हूं जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, क्या आपने ये मुतालबा अयाज सादिक साहब से किया था? पार्टी मेंबरशिप का मुतालबा किया था? हमने तस्लीम किया। वो ज़िमनी इलेक्शन में गए, पार्टी का टिकट लेकर आए, दोबारा मुंतखब हुए, शेर के निशान पर आए, हमने तस्लीम किया। वो स्पीकर मुंतखब हुए, हमने तस्लीम किया। उन बेंचेस पे ऑपोजिशन में बसद एहतराम उनका हम हुक्म बजा लाते थे। हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जो आज आप मुतालबा फरमा रहे हैं। अब ये दोहरा मयार है और इस दोहरे मयार से हमें इज्तनाब करना चाहिए। जनाब वाला, आपने जिक्र किया इंतखाबी इस्लाहात का। बजा तौर पर पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत थी, हर दौर में उसका तज़किरा होता रहा, हमने भी किया। और आपको पता है जब 2013 के इंतखाबात हुए जिन पर एक सवालिया निशान था, हमें एतराज़ात थे, तो हमने कानूनी रास्ता अख्तियार किया। हमने 1 साल का इंतजार किया, हमने 4 हलकों का हवाला दिया और फिर हमने अदालत से रुजू किया। हमने पब्लिक मोबिलाइजेशन की और पब्लिक मोबिलाइजेशन के बाद हम अदालत से रुजू किया। अदालत ने हमारी बात तस्लीम की, एक जुडिशल कमीशन तश्कील पाया। जुडिशल कमीशन ने अपनी सिफारिशात मुरतब की, 40 के लगभग उनकी सिफारिशात थी। उन सिफारिशात को सामने रखते हुए हमने बाइकआउट नहीं किया आपकी तरह, हम बैठे, हम ऑपोजिशन में थे, हम हिज़्ब इख्तिलाफ में थे। हमने हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठकर उन सिफारिशात को आपके साथ बैठकर कानून की इस्लाह के लिए, निज़ाम की बेहतरी के लिए उस निज़ाम में परोने की कोशिश की। और आज जिस कानून साजी का आप जिक्र करते हैं और जिसका क्रेडिट आप क्लेम करते हैं, उसमें तहरीक इंसाफ का पूरा हिस्सा शामिल है। जनाब वाला, ये मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। जनाब वाला, मैं ये भी अर्ज करता चलूं, आपने फरमाया रियासत मदीना, बिल्कुल हो सकता है आप
सोच है उसका भी एहतराम है, लेकिन जनाब वाला मैं बांगे दोहल कहना चाहता हूं, रियासत मदीना का तस्वुर और ख्वाब हर पाकिस्तानी बच्चे बच्चे के दिल में बसता है, जो समझता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी की मूवमेंट में जिस काफले में जो शामिल थे, वो रियासत मदीना का वो असूल था, वो कॉन्सेप्ट था, वो वैल्यूज थी, जिसको उजागर करने के लिए आज हमने ये अलम बुलंद किया है। जनाब वाला आप कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को हम वोट का राइट देना भी चाहते हैं, लेकिन एतराजात भी करते हैं। जनाब वाला, मैं आज ओवरसीज पाकिस्तानीज को, इस ऐवान को मुखातिब और गवाह बनाकर कहना चाहता हूं कि ये कैसा माजरा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को उनका डॉलर कबूल है, उनका वोट देना कबूल नहीं है। ये कैसा दोहरा मयार है कि 30 अरब डॉलर भिजवा दे तो हमें कबूल है, लेकिन फिर भी हम उनको एहसास शमूलियत नहीं दिलवाएंगे। वो कौम का सासा है, बजा तौर पर कौम का सासा है, और उस असासे को हम पाकिस्तान के फैसलों में समोना चाहते हैं। हम उनको पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। उनमें बेपनाह काबिल और जो दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह वो अपना हिस्सा अदा करेंगे। उनको राइट टू वोट दिया जाएगा अगर आज ऐवान इस बिल को मंजूर करता है। और जनाब वाला, मैं अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने कहा कि इंतखाबात को चोरी से बचाना है। बिल्कुल, इंतखाबात को चोरी से बचाना है, और इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि ऐवान को मौखर न किया जाए, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ से गुजारिश करूंगा, अगर चोरी से निजाम को बचाना है तो आज इस बिल के हक में वोट दीजिए और अपने ज़मीर का सौदा न कीजिए।